So next chapter, electromagnetic induction. So in this first question, in a Faraday disk dynamo, a metal disk of radius r is rotating with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center. So I have a metal disk which is rotating. So this type of derivation we have done. This is a simple case of rotational EMF. We have done two types of EMF, rotational EMF and translatory motion of an EMF. So this is an example of rotational EMF in which I have a metal disk which is rotated of radius r is given to us in the question and omega. So we know that if I take a disk, a circular disk having radius r, so the EMF at any one cross section, the EMF induced due to angular velocity omega in magnetic field B is given by dE equal to BV into dr. I will write here capital R because we have been given capital R as the radius. This we have done in rotational EMF derivation. So dE is equal to BV dr. Integrate this equation, we get integral dE equal to integral BV dr. We know that integral dE will be equal to EMF and B is constant. Inside it will be V into dr. Now we have been given angular velocity omega. So what we will do, V equal to R omega. So E equal to B integral R omega, capital R into omega into dr. So omega is also constant. So it will come out B omega integral R dr. Integration of R will be R square by 2. So this will be B omega R square by 2. That is our answer. A horizontal wire of length 20 meter, length is given to us, having velocity is given to us 10 meter per second, normal to the earth's magnetic field B is given to us. So what is the induced EMF? Now the sums are a previous year question which I have asked for 2 marks, and many times this type of question has been asked. So mark it as very, very important. We will solve 3 sums in this way, and out of those 3 sums, 2 have already been asked in many years and they are repeated. Okay, so it is very simple sum for 2 marks. E equal to BLV, translatory motion of EMF formula we will be doing. E equal to BLV, simple. B into L into V. B is given, L is given, V is also given. So just substitute the value, you will get your answer. 0.5 into 10 ka power minus 4 into 20 multiplied by velocity is 10. So this I can write, when this will get cancelled, this will be 10. So E equal to 10 into 10 100 into 10 raised to minus 4. So you can leave it here also, or you can write 100 into 10 raised to minus 4 can be written as to minus 2. Any answer is fine. Next, a metal disc of radius is given to us r, 30 centimeter, spins 20 revolution per second, frequency is given 20 rps. Rps matlab hertz. The radius is given 30 into 10 raised to minus 2 meter. Transverse symmetry axis in a uniform magnetic field B is given to us. The field is parallel of rotation. Calculate the area swept out per second. So area swept out per second मतलब क्या होगा, टाइम. तो एरिया अपॉन टाइम, बट टाइम इज नॉट गिवन. फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी. तो आई विल राइट हियर एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकंड का मतलब क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम. पर सेकंड मतलब टाइम डिनोमिनेटर में आएगा, बट टाइम इज नॉट गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन. सो टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी. सो आई विल राइट एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी. तो एरिया ऑफ अ डिस्क बोला है, डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी. सो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज 20. So just solve this, you will get the answer in meter square area. Second, the flux cut per second. Again, flux cut per second मतलब flux divided by time. पर सेकेंड बोला है, पर सेकेंड का मतलब होता है टाइम. तो फ्लक्स अपॉन टाइम. तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू एरिया, बी इंटू ए डिवाइडेड बाई टाइम टी. अगेन टाइम टी इज नॉट गिवन, सो आई विल राइट बी इंटू ए इंटू फ्रीक्वेंसी. तो बी का वैल्यू इज गिवन टू अस, दैट इज 0.20. एरिया का जगह पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर. सो दैट इज 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज 20. सो दिस विल बी फ्लक्स. तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर. ठीक है, सो वेबर. ठीक है, कुछ नहीं करना है. ये जो ऊपर कैलकुलेशन किया है उसको 0.2 मल्टीप्लाई कर दो. ये कैलकुलेशन हमने ऊपर किया है, दिस कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग हियर ओनली. सो दिस सेम वैल्यू ये यहाँ पे लिख देना, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर. सी, फाइंड द ईएमएफ बिटवीन द एक्सिल एंड द रिम. ईएमएफ होता है d phi by dt.
डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स अपॉन टाइम। तो फ्लक्स अपॉन टाइम तो हमने बी केस में निकाल लिया है ना पहले से, तो ये आंसर सेम, ये सेम आएगा 0.20 इंटू 3.14 इंटू 30 into 10 raised to minus 2 square multiplied by 20. Same answer we will be writing because we have already found out flux upon time ना, EMF होता है d phi by dt, यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा इसका वोल्ट। Next, a pair of adjacent coil having mutual inductance M is given to us. It changes from 0 to 10 ampere. So di का वैल्यू दिया है 10 ampere in time dt. ठीक है, सो m का वैल्यू दिया है 1.5 हेनरी, di का वैल्यू दिया है फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 10 एम्पियर, dt टाइम का वैल्यू दिया है 0.2 सेकेंड। फाइंड द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विल बी गिवन बाय, तो फ्लक्स का फॉर्मूला चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इज गिवन बाय डी फाई इक्वल टू, ठीक है, डी फाई इक्वल टू m इंटू डी आई, सिंपल। सो डी फाई विल बी इक्वल टू m का वैल्यू 1.5, डी आई का वैल्यू 10, सो दिस विल बी 15 वेबर। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग है, कुछ बुक्स में आंसर 75 लिखा होगा, सो दैट इज रॉन्ग, सो आंसर इज 15। ठीक है, a long solenoid turns per unit length, number of turns per unit length मतलब small n का वैल्यू दिया है, number of turns per unit length, remember magnetic field चैप्टर में हमने पढ़ा है, solenoid has turns per unit length मतलब small n होता है कैपिटल n अपॉन l, तो कैपिटल n अपॉन l का पूरा वैल्यू दिया है सॉल्व करके, तो स्मॉल n का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10 का पावर 3 पर मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू अस एज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 का पावर -4, यू विल कन्वर्ट हियर, sorry 25 centimeter square, we will convert this, a coil C of 150 turns, ठीक है, ओके, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N का वैल्यू दिया है 150 turns is given to us, is wound tightly around the center of the solenoid for a current of 3 ampere, I का वैल्यू दिया है 3 ampere in the solenoid, calculate the magnetic flux density, magnetic flux density मतलब magnetic field, तो magnetic field of a solenoid B is equal to mu naught into Ni, mu naught का वैल्यू पता होना चाहिए, that is a constant, that is 4 pi minus 7, small n का वैल्यू 1.5 into 10 का power 3, करंट का वैल्यू 3, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा टेस्ला में, फर्स्ट केस। सेकेंड वन, द फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज ये हमने पढ़ा है, फ्लक्स लिंकेज होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज होता है n फाई, सो n तो वैल्यू दिया है, फाई नहीं दिया है, तो फाई क्या होता है b इंटू ए, फाई का वैल्यू होता है b इंटू ए, तो ये हो जाएगा nba, n का वैल्यू आएगा 150, b का वैल्यू यहाँ पे जो ऊपर मिला ना b, वो b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा b का वैल्यू, एंड एरिया का वैल्यू इज गिवन टू अस, एरिया का वैल्यू दिया है 25 इंटू 10 का पावर -4, सो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, फ्लक्स लिंकेज विल बी इन वेबर। ठीक है, सी थर्ड पार्ट, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन इट इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन इन टाइम दिया है, ओके, dt का वैल्यू दिया है 0.5 सेकेंड, इतने टाइम में अगर करंट रिवर्स हो गया तो कितना फ्लक्स होगा, तो रिवर्स के केस में व्हेनेवर इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि रिवर्स करंट अगर रिवर्स होता है, प्लीज रिमेंबर व्हेनेवर इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग करंट इज गेटिंग रिवर्स, यू विल ऑलवेज यूज 2 d phi by dt, our formula will be 2 times d phi by dt, why, जाने के लिए d phi by dt, रिवर्स हो रहा है ना, रिवर्स मतलब वापस आएगा, उसके लिए भी d phi by dt, तो टोटल EMF will be 2 times of d phi by dt, 2 times of d phi by dt, so that will be 2 into b, तो all values when you substitute you will get this answer also in volt। ठीक है, so रिवर्स मीन्स जाएगा एक बार और आएगा एक बार, सो 2 times। नेक्स्ट वी हैव अ नंबर ऑफ टर्न्स, n इज गिवन विद एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब -4 आ जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न 2000 है, मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू दिया है, द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली इन टाइम dt, calculate the EMF, very simple, E equal to n d phi by dt, so E equal to n का वैल्यू 2000, d phi, phi again phi के जगह पे क्या आता है b into a डिवाइडेड बाई dt, याद रखो फ्लक्स b इंटू ए होता है, सो b का वैल्यू कितना दिया है 0.60, एरिया का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10 raised to -4 डिवाइड बाई dt का वैल्यू इज 0.2, तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस आंसर इन वोल्ट। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू BLV, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, स्पिन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन लेंथ दिया है 50, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी दिया है 400। ठीक है, सो L का वैल्यू इज 50 मीटर, वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला, सो पुट द वैल्यू, सो E इक्वल टू 6 इंटू 10 का पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 50, सो 6 4 24, 24 इंटू 5 इज 120, सो 120
1 2 3 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है। सो इसको सॉल्व करो, 1 2 3 4 5 टाइम्स पीछे जाएगा, सो 1.2 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। A stiff semicircular wire of radius r rotated in uniform magnetic field B about an axis passing through ends. If the frequency of the rotation of the wire is f, calculate the amplitude of alternating. So EMF पता करना है, frequency अगर f दी है, so E equal to सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। दिस इज सेमी सर्कुलर वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो हमें पता है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो अगेन फाई नहीं दिया है तो फाई की जगह पे B लिखेंगे, सो B इंटू ए। अच्छा टाइम भी नहीं दिया है, टाइम की जगह पे क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, सो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो बी ए एफ आ जाएगा, b इंटू ए इंटू एफ, 1/t इज एफ, ठीक है, 1/t एफ हो गया। b का वैल्यू एज इट इज रखो, a के जगह पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, सो b इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी f, ठीक है, एंड नथिंग एल्स इज गिवन, ठीक है। ओके ओमेगा नहीं है ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी f इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है। So in that case this will be our answer. So EMF, calculate the amplitude of the alternating EMF. Okay, amplitude पता करना है, okay. So amplitude में we will have to not write this, amplitude में, sorry ये गलत हो गया, amplitude में we will have different formula, one second, amplitude में, okay, just leave that. In amplitude we have different formula, not this one. Amplitude पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू एन ए, ये हमारा फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड पता करने के लिए। आई थॉट कि EMF पता करना है, तो ठीक है, तो EMF के लिए है डी फाई बाई डी टी, एम्पलीट्यूड के लिए E इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। ये हमने किया है ऑल्टरनेटिंग EMF, ऑल्टरनेटिंग EMF वाला जो टॉपिक है, या AC जनरेटर जो टॉपिक है उसमें हमने किया है, ठीक है। सो E इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, या E नॉट ले लो, E नॉट होता है एम्पलीट्यूड, N का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे एक ही रिंग है तो N का वैल्यू आएगा 1, एरिया के जगह पे आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, B के जगह पे B आएगा, ओमेगा के जगह पे आएगा 2 पाई एफ, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो क्या मिलेगा, सो E नॉट विल बी इक्वल टू 1 इंटू एरिया के जगह पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू B इंटू 2 पाई एफ, सो यहाँ से 2 कैंसिल, सो E नॉट विल बी इक्वल टू पाई इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बी एफ, दैट इज अवर आंसर, दैट्स इट। कैलकुलेट द इंड्यूस, अगेन E इक्वल टू BLV, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का करेक्शन आएगा, खाली किलोमीटर पर आवर में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड, सो वेलोसिटी विल बी 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। लेंथ का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू भी दिया है, सो E इक्वल टू B का वैल्यू इज गिवन 5 इंटू 10⁻⁻⁵, L का वैल्यू दिया है 1.75, वेलोसिटी का वैल्यू है 50 इंटू 5/18, तो जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर इन वोल्ट। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज 10 हेनरी, कैपिटल M का वैल्यू दिया है 10 हेनरी, DI का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, DT का वैल्यू दिया है 0.2, कैलकुलेट द EMF। सो EMF का फॉर्मूला आता है E इक्वल टू M DI बाई DT, सो 10 मिली हेनरी, मिली मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी, 10 इंटू 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई बाई DI का वैल्यू क्या आएगा, 5 - 1, ठीक है, एक 5 दिया है एक 1 दिया है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 1 दैट इज 4, एंड DT का वैल्यू, ओके DT डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो EMF आ जाएगा वोल्ट में। ऑल्सो कैलकुलेट द इंड्यूस चार्ज, चार्ज का वैल्यू पता करना है, Q का वैल्यू पता करना है, व्हेन R का वैल्यू एज 5 ohms। तो चार्ज पता करने के लिए आई नो दैट करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, वी नो दिस फॉर्मूला, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, एंड ऑल्सो E इक्वल टू IR, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है, E इक्वल टू IR, तो यहाँ से I का वैल्यू निकालो, I का वैल्यू आ जाएगा E/R, ये I का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, E/R इक्वल टू Q/T, सो Q कितना, ET अपॉन R, तो E का वैल्यू जो यहाँ पे मिला था वो E का वैल्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम 0.2 एंड ये 5, तो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा कूलम में, आंसर विल बी इन कूलम। Next question, EMF of 96 millivolt, so EMF is given E equal to 96 millivolt, so that is 96 into 10⁻³ volt induced in winding coil when the current of the nearby coil changes
at a rate of 1.20 ampere per second. Whenever ampere per second is given, that is di by dt is given 1.20 ampere per second, calculate the mutual inductance M. So we know that E equal to M di by dt. This is our formula. So 96 into 10 raised to minus 3 equal to M into 1.20. So therefore M will be equal to 96 into 10 raised to minus 3 divided by 1.20. So I can write here 96 into 10 raised to minus 3 divided by, this can be written as 12 into 10 raised to minus 1. Okay, so this is 12 8 za 96. So M will be equal to 8, minus 1 ऊपर जाएगा तो plus 1, 1 minus 3 is minus 2. So 8 into 10 raised to minus 2 Henry. A long solenoid of length L having area of cross section A, number of turns N1 that is in a primary coil, having a small N2 in a secondary coil. मतलब एक coil के अंदर दूसरा coil है. There is one coil, ठीक है, assume that there is one coil. In one coil there is one another coil having some turns. So find the mutual inductance. Okay, so we know that in case of mutual inductance, the flux passing through the coil, so the flux passing through coil 2, I will write here coil 2 as phi 2, that will be equal to N2 number of turns of second one, primary के वजह से जो magnetic field होगा B1 multiplied by area. This is our formula, we have learnt in theory also. So the flux passing through the second coil phi 2 will be equal to N2 B1 into A. A is area will be same. So N2 मतलब number of turns of second coil, B1 मतलब magnetic field of the first coil. Now magnetic field of the first coil कौन सा है? Solenoid है. दोनों वैसे तो solenoid है. So first one is solenoid. So magnetic field due to solenoid. So we will write here magnetic field B1 due to coil 1. So that will be given by B1 equal to mu naught Ni होता है formula, right? But N is not given. So instead of N, what we will write? B1 will be equal to, इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज गिवन टू अस, ठीक है, लेंथ दिया है तो लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे. तो लेंथ के टर्म्स में होता है म्यू नॉट इंटू एन के जगह पे एन अपॉन एल आ जाएगा. एंड फर्स्ट वाला नंबर ऑफ टर्न्स है N1, फर्स्ट वाले का करंट है I1, ठीक है, या दैट्स इट. सो म्यू नॉट इंटू N1 अपॉन एल. क्या किया? सिर्फ स्मॉल n के जगह पे कैपिटल N1 अपॉन एल आ जाएगा. अभी वी नो दैट इन केस ऑफ सोलेनॉइड वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला N1 अपॉन L. मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में सोलेनॉइड में हमने लिखा है स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन L. सो दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड. सो ये वैल्यू डाल दो phi 2 में. सो देयरफॉर phi 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? N2 एज इट इज. B1 के जगह पे आएगा म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है. अच्छा, नॉट नेसेसरी टू राइट I1, ठीक है, वी कैन राइट हियर बिकॉज दो कॉइल है ना, दो कॉइल के लिए एक I1 ले लेंगे, दूसरे के लिए I2 ले लेंगे इनटू एरिया A. तो ये मुझे मिल गया फ्लक्स, लेकिन मुझे फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस M चाहिए. सो वी नो दैट फ्लक्स phi 2 इक्वल टू M इंटू I1. ये हमारा फॉर्मूला है, phi 2 इक्वल टू M इंटू I1. सो देयरफॉर M का वैल्यू we will get here from here. M का वैल्यू we have to find out, ठीक है. So first I will rearrange this thing. Wait 1 second, we will rearrange this from here and we will write this flux. We need M, right? So M का वैल्यू, ठीक है. So I can write this as therefore M will be equal to mu naught N1 N2, ठीक है, into A divided by L. So that is our answer for mutual inductance. Next. So the primary and secondary coil of a transformer each have inductance. ये L का वैल्यू दिया है. Each there are two coil, एक है primary एक है secondary. So I will write L1 का वैल्यू and L2 का वैल्यू, दोनों वैल्यूज दिया है. Both values is this only. The mutual inductance is given. What percentage of flux from one coil reaches the other? मतलब coefficient of coupling पता करना है. Recall coefficient of coupling का हमने फॉर्मूला लिखा है. Coefficient of coupling we have written M equal to K root L1 into L2. ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है. सो M का वैल्यू दिया है, L1 L2 का वैल्यू दिया है. L1 L2 दोनों सेम है, यही है 200 into 10 raised to minus 6. K का वैल्यू पता करना है. सो K will be equal to M divided by root of L1 into L2. सो M का वैल्यू कितना आएगा? M का वैल्यू आएगा 4 into 10 raised to minus 6 divided by this value will be root of 200 into 10 raised to minus 6 multiplied by 200 into 10 raised to minus 6. तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा. तो व्हेन यू सॉल्व यू गेट 2%. दैट इज योर आंसर.
A toroidal ring is made from a bar of length is given 1 meter, diameter is given 1 सेंटीमीटर, तो therefore रेडियस हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हो जाएगा हमारा रेडियस. नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो स्मॉल n का वैल्यू दिया है 100 पर सेंटीमीटर. इफ द परमेबिलिटी ऑफ द बार इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, मतलब म्यू नॉट का वैल्यू लेना है. ठीक है, सो फर्स्ट आई राइट द गिवन डेटा. L इज गिवन एज 1 मीटर, R का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 10⁻², R का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू दिया है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर. पर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर को मीटर में करो तो 100 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -2, -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4 टर्न्स पर मीटर. ठीक है, okay, first find the value of magnetic field when the current is given as 100 ampere. Current is given as 100 ampere. Find the magnetic field inside the bar. ये कैसा बार है? टोरॉइडल बार है. तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड B equal to mu naught Ni. We have studied this. So B equal to 4 pi into 10⁻⁻7. N का वैल्यू कितना है? 10 का पावर 4. I का वैल्यू कितना है? 100. ठीक है, 100 मतलब 10 का पावर 2. तो 4 plus 2, 10 का पावर 4 and 10 का पावर 2 is 6 and 6 minus 7 is -1. So B will be equal to 4 pi. 4 pi होता है 12.56 into 10 का पावर -1. -1 को शिफ्ट करो तो B will be equal to 1.256 टेस्ला. रिमेंबर 4 pi का वैल्यू याद रखो डायरेक्ट. ऑलवेज यू विल नॉट कीप ऑन सॉल्विंग. 4 pi का वैल्यू 12.56 होता है. डायरेक्टली मेमोराइज दिस वैल्यू. ठीक है, बिकॉज मेनी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में 4 pi बार बार आना है, तो अगेन एंड अगेन यू विल नॉट कीप ऑन मल्टीप्लाइंग 4 into 3.14. So that is better you directly memorize this. It will be helpful for entrance also कि 4 pi का वैल्यू is 12.56. Next, second is calculate the self inductance. L का वैल्यू पता करना है. So we have studied that L by L equal to mu naught n square into एरिया A. ठीक है, एरिया A नहीं दिया तो उसकी जगह पे लिखेंगे L by L equal to mu naught n square pi r square, because radius is given. So ये लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है which we have studied. So capital L का वैल्यू I need to find. Small l का वैल्यू 1 है, सब वैल्यू है हमारे पास. Put the value and do the calculation. Last sum, a magnetic field B of t is pointing upward fills in a circular region, radius S दिया है. If B is the magnetic field, find the EMF. तो E equal to integral B dt. ठीक है, या we will not write integration, so without doing that also we can do. ठीक है, so I can write E equal to d phi by dt, and instead of phi I will write d by dt of what? B into area A. ठीक है, so I can write this as B बाहर, अंदर बचेगा d by dt ऑफ एरिया. क्या बोला है? देखो रेडियस s बोला है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई s स्क्वायर. ठीक है, नॉट पाई r स्क्वायर. पाई r स्क्वायर तब होगा जब रेडियस r है, तो बट रेडियस r नहीं है, रेडियस इज s. सो दिस विल बी इक्वल टू पाई s स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज अवर इक्वेशन. सो E इक्वल टू b d by dt पाई s स्क्वायर. ठीक है, सो आई विल टेक b पाई बाहर. ठीक है, एंड इनसाइड व्हाट आई विल डू इज, you can leave it here only, it is okay. Even if you leave it here, that is fine. So this is your answer, so no need to solve ahead. This will be your answer. ठीक है, या अदरवाइज व्हाट विल यू डू, हमें अगर t के टर्म्स में चाहिए, सो ओके, मैग्नेटिक फील्ड हियर इज इन टर्म्स ऑफ टाइम t. ओके, सो व्हाट डू वी डू, वी कैन डू वन थिंग हियर, वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो आई विल डू वन थिंग हियर. b इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो डेरिवेटिव होगा, one second, I'll erase this also. Okay, so here it has been given to us that b is a function of time t. तो हम क्या करेंगे, b का डेरिवेटिव लेंगे, एरिया को बाहर ले लेंगे. ठीक है, एरिया बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा d by dt ऑफ b. b ऑफ t लिख दो, बिकॉज क्वेश्चन में b ऑफ t बोला है. सो b ऑफ t, एरिया का वैल्यू अभी डाल दो, ये हो जाएगा पाई s स्क्वायर. अंदर क्या बचेगा? d by dt ऑफ b ऑफ t. दैट इज योर आंसर. दैट्स इट. ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.